students. Today I am going to explain you chapter 7 of social studies for class 4th, that is India, the climatic conditions. Students, in this chapter we will read about what climate means, the elements of climate, the seasons in details. So, let's begin. First, we will read about what climate means. The average conditions of weather of a large area for a long time is called the climate of that area. Okay, so climate can be best described as the physical weather condition of a place over a long period of time. So किसी भी लार्ज एरिया में मौसम की कंडीशन जो कि लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है उसे हम उस एरिया का क्लाइमेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्लेस इज कॉन्स्टेंटली वार्म एंड ड्राई, the climate of the area is said to be warm and dry. The physical features like mountain, hills and water bodies also influence the climatic conditions of a country. Physical features जैसे कि mountain, hills, water bodies ये भी हमारी climatic condition को प्रभावित करती है. Now we will read about elements of climate यानी climate के तत्व. The climate of an area includes temperature, distribution of rainfall, direction and speed of winds. These are called the elements of climate. Okay, so as you know children, India is very big country. The climatic conditions in India vary from cold climate in the northern mountains to very hot in the Rajasthan desert. The coastal areas are mild. Some areas get heavy rainfall while others remain dry. तो इंडिया हमारी बहुत ही बड़ी कंट्री है, लेकिन इतनी बड़ी कंट्री की जो क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है वह हर एक जगह की अलग अलग रहती है. नॉर्दर्न माउंटेन जो रहते हैं वहाँ का जो क्लाइमेट है वह ठंडा रहता है. राजस्थान डेजर्ट का क्लाइमेट काफी हॉट रहता है. कोस्टल एरिया जो कि समुद्र के किनारे वाले एरिया रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही माइल्ड रहता है, वहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा रहता है. सम एरियाज गेट हैवी रेनफॉल, कुछ एरियाज जो हैं वो बहुत ही ज्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं और कहाँ पे बिल्कुल सूखे की स्थिति रहती है. द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन इंडिया can easily be explained in terms of an annual cycle of season. It consists of 4 main seasons. These are the winter season, the summer season, the rainy season and the autumn season. We experience these seasons one after the other in a regular manner. So, climatic conditions can change for shorter periods of time. Those short time periods are called season. Climatic condition जो कि short period के लिए change होती है वो ही seasons कहलाती है. As you know children, seasons of the earth occurs because of the rotation of the earth on its axis and revolution on around the sun. Okay, now we will read about the winter season. The winter season in our country begins in the month of November and continues till the month of March. जो हमारे इंडिया की जो विंटर सीजन है वह नवंबर से स्टार्ट हो जाती है, नवंबर से स्टार्ट हो जाती है और मार्च की स्टार्टिंग तक चलती है. January is the coldest month in every part of India. जनवरी जो है हमारी इंडिया का वो सबसे ठंडा महीना होता है. द कोल्डेस्ट प्लेस
is Dras in Jammu and Kashmir. During this season, the nights are longer than the days. The days are warm and nights are cold. The winds blow from land to sea. Thus, a major part of a country except Tamil Nadu remains dry. The retreating monsoon winds pick up moisture when they pass over the Bay of Bengal. The coastal areas in Tamil Nadu get rainfall from this wind. जो तमिलनाडु है वहाँ पे विंटर सीजन में बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है. The strong wind coming from the west causes light rainfall in the plains and snowfall in the northern mountains. These winds are called western disturbance. The weather is generally pleasant in the winter season. The southern states in India do not experience a distinct cold weather season. जो इस सीजन है वहाँ में जो सदर्न स्टेट का जो क्लाइमेट रहता है वहाँ पे ठंड नहीं रहती, जबकि वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट, बहुत ही ज़्यादा सुहावना रहता है. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? साइक्लोन होता है जो कि कहाँ से आता है, यूरोप से विंटर सीजन में, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं. ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट द समर सीजन. The summer season in our country begins at the end of March and continues till the month of June. जो समर सीजन है वो मार्च के एंड से स्टार्ट होके जून तक चलती है. जनरली द वेदर इज हॉट एंड ड्राई इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इन द माउंटेन. द हॉटेस्ट प्लेस इज नियर बीकानेर इन राजस्थान. सबसे जो गर्म प्लेस है वो राजस्थान में बीकानेर के आसपास का जो एरिया रहता है वो ज़्यादा ही गर्म रहता है. ड्यूरिंग समर सीजन द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स. हॉट ड्राई एंड डस्टी विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ओवर द नॉर्दर्न प्लेन. जो बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा चलती है इस सीजन में, समर सीजन में, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? लू के नाम से. द डेक्कन प्लेटो ऑफ इंडिया is cooler due to the influence of surrounding water bodies. डेक्कन प्लेटो जो है हमारे इंडिया का वो ठंडा रहता है क्योंकि उसके चारों तरफ क्या है? वाटर बॉडीज हैं और वो वाटर बॉडीज वहाँ के एरिया को प्रभावित भी करती हैं. डस्ट स्टॉर्म आर कॉमन इन इवनिंग. समटाइम्स दीज डस्ट स्टॉर्म ब्रिंग लाइट रेन. दिस रेन इज कॉल्ड काल बैसाखी. कभी कभी क्या होता है? धूल वाला तूफान होता है जो कि अपने साथ क्या लाता है? बहुत ही हल्की बारिश, जिसको असम और वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है. इन कर्नाटका एंड केरला दिस इज कॉल्ड द मैंगो शावर एज इट हेल्प्स इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज. और कर्नाटका और केरला में इसको मैंगो शावर के नाम से जानते हैं जो कि हेल्प करता है हमारे मैंगो को पकाने में. हम Now we will read about the rainy season. The rainy season in our country begins with the onset of summer monsoon winds in the month of June. This season continues till the end of September. जो मानसून जो रेनी सीजन है हमारी इंडिया की वो जून से स्टार्ट होती है और सितंबर के एंड तक चलती है. The summer monsoon winds enter India from the southwest direction. Thus, these winds are also called the southwest monsoon winds. The Indian peninsula divides the southwest monsoon winds into two branches. जो इंडियन पेनिनसुला है वो साउथ वेस्ट मानसून को टू ब्रांचेस में डिवाइड करता है, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच. डू यू नो स्टूडेंट्स, जो हमारी अरेबियन सी ब्रांच है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है बे ऑफ बंगाल ब्रांच से. ओके, दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड एंड कैरी विद देम अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. ये यहाँ की जो विंड्स हैं, यहाँ की जो हवाएं हैं, ये जो हवा है अरेबियन सी ब्रांच की और बे ऑफ बंगाल ब्रांच की,
वो सी टू लैंड चलती है और अपने साथ बहुत सारे अमाउंट में मॉइस्चर यानी नमी लेके आती है। नेक्स्ट, मौसिनराम इन मेघालय इज द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। मौसिनराम मेघालय में सबसे गीली जगह है पूरे वर्ल्ड की। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन आवर कंट्री इज रिसीव्ड ड्यूरिंग this season. The monsoon winds are very irregular. They can cause flood in one part of the country and drought in another part of the same time. हमारी इंडिया में जो मॉनसून विंड्स हैं वो काफी इरेगुलर हैं, असामान्य है। कहाँ पे तो बहुत ज्यादा बारिश गिरता है जहाँ इसके कारण फ्लड जैसी सिचुएशन, फ्लड मीन्स होता है बाढ़ जैसी सिचुएशन आ जाती है, और कहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है और वहाँ पे ड्रॉट, अकाल जैसी स्थिति बनी रहती है। द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया इज अबाउट 125 सेंटीमीटर्स। द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन. Normally it decreases from south to north and also from east to west. Now we will move to our next season, the autumn season. The autumn season in our country begins with the end of the rainy season and continues up to the month of November. During these months, the southwest monsoon winds started withdrawing from the northern plains of India. Thus, this season is also called the season of retreating monsoon. ये जो सीजन है वो कब से स्टार्ट होती है? ये सीजन हमारी एंड ऑफ द रेनी सीजन के एंड से स्टार्ट होकर के नवंबर तक चलती है। ओके, ड्यूरिंग दिस मंथ्स द वेदर इज चेंज्ड फ्रॉम हॉट वेट टू कूल ड्राई. द डेज आर जनरली वार्म एंड नाइट्स आर कूल. ड्यूरिंग दिस मंथ्स, इन मंथ के दौरान हमारा जो वेदर है वो चेंज हो जाता है, हॉट वेट से कूल ड्राई हो जाता है। डेज जो होते हैं वो वार्म होते हैं और नाइट्स क्या होती हैं? कूल. द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया experiences cyclone during this season. So children, did you know the cycle of seasons in India is dominated by the monsoon winds. Okay, इंडिया में जो हमारा सीजन की जो साइकिल है वो किससे प्रभावित होती है? हमारी मॉनसून विंड से ही प्रभावित होती है। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. ओके, आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड. थैंक यू स्टूडेंट्स.